خیبر پختونخوا قدرتی آفات کی بھیانک لپیٹ میں، کلاؤڈ برسٹ، موسلادھار بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں 347 افراد جاں بحق، معصوم بچے، خواتین اور بوڑھے والدین بھی شامل، 148 زخمی، درجنوں خاندان اجڑ گئے، 74 مکانات تباہ، 11 مکمل تباہ ہو چکے۔ آسمان برسا، زمین پھٹ گئی، ہر طرف چیخو پکار، آنکھیں اشک بار، فضا سوگوار۔ سوات، باجوڑ، بنیر، بٹگرام، مانسہرہ، شانگلہ اور تورغر شدید متاثر۔ باجوڑ اور بٹگرام میں قیامت صغریٰ، سیاحتی مقامات بند، ریسکیو سرگرمیاں جاری۔ صوبے بھر میں آج یوم سوگ۔ گلگت بلتستان میں بھی سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی تباہ کاریاں۔ گزشتہ 3 روز میں 12 افراد جاں بحق، 5 زخمی اور 2 لاپتہ ہو گئے۔ ضلع غزل میں سینکڑوں مکان منہدم، مساجد شہید، سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ شاہراہ بلتستان میں گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی، حادثے میں 1 سیاح جاں بحق ہو گیا۔ کل سے مانسون کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی۔ کل سے 19 اگست تک کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان۔ اسلام آباد، مری، گلیات اور پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 18 سے 20 اگست تک جنوبی پنجاب اور 17 سے 22 اگست تک کراچی سمیت سندھ کے مختلف حصوں میں بارشیں ہوں گی۔ بلوچستان میں بھی 17 سے 20 اگست کے دوران بارش کا امکان۔ میاں والی، چکوال، تلاگنگ اور اٹک میں بھی کلاؤڈ برسٹ کا خطرہ۔ مانسون بارشوں اور سیلاب کا خطرہ بھی ٹلا نہیں۔ NDMA کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مشرقی اور مغربی ہواؤں کے میلاب سے مانسون اسپیل کی شدت میں مزید اضافہ متوقع۔ سیلاب زدہ علاقوں میں فوج اور فرنٹیئر کور کی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور امدادی سامان کی ترسیل۔ فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایات پر ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیاں بھرپور۔ قومی جذبے، ہم آہنگی اور عسکری نگرانی کے ساتھ تیزی کے ساتھ جاری۔ فیلڈ مارشل کا متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے جامع حکمت عملی اور فوجی افسران کی نگرانی میں مکمل کوارڈینیشن یقینی بنانے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کی چینگی بانڈا کے قریب تباہی، حادثے میں جاں بحق عملے کی نماز جنازہ ادا۔ ہیلی کاپٹر کے 2 پائلٹس اور دیگر اسٹاف کی نماز جنازہ سول سیکریٹریٹ پشاور میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سول اور عسکری افسران کی شرکت، شہداء کے لواحقین بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ہیلی کاپٹر عملے نے دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں۔ 2 ہیلیز ہمارے صوبائی حکومت کے کام کر رہے تھے، ان میں ہمارا ایک جو ہیلی ہے وہ خراب موسم کی وجہ سے کریش کر گیا ہے، جس میں ہمارے 5 جو لوگ ہیں اس کے پائلٹس اور کریو جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس کے اندر بھی تمام جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور تمام جتنے بھی محکمے ہیں، وہ ادارے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں ریسکیو آپریشن کے اندر۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے متاثرہ سڑکوں اور پلوں کی فوری بحالی۔ وفاقی وزیر مواصلات کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ۔ NHA ہنگامی بنیادوں پر متحرک۔ گلگت بلتستان اور KP میں لینڈ سلائیڈنگ کے ملبے کی صفائی اور شاہراہوں پر ٹریفک کی بحالی۔ پنجاب و سندھ سے اضافی مشینری اور افرادی قوت طلب۔ سندھ حکومت کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 10 ٹرک راشن بیگز، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور دیگر اشیاء خورنوش فوری طور پر بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔
मॉनसून की शिद्दत के बायस सयाहत महदूद करने की एडवाइजरी जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मॉनसून की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र पहाड़ी इलाकों में सयाहत महदूद करने की एडवाइजरी जारी कर दी। मुताल्लिक़ा इदारे मॉनसूनी स्पेल के दौरान खतरनाक इलाकों में अवामी आमदोरफ्त महदूद करने के फौरी इक़दाम करें। ज़रूरत पड़ने पर दफ़ा 144 के तहत सयाहती पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उम्रा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी कायद को केपी में सैलाब के बाद की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से तफसीली आगाह किया। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत की। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया। 24 घंटों में 28,300 क्यूसेक से जायद पानी का इजाफा। दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,59,948 क्यूसेक तक पहुंच गई। इखराज 2,30,299 क्यूसेक रिकॉर्ड। नहरी निजाम पर दबाव बढ़ने लगा। घोटकी, डेजर्ट पिट और बेगारी फीडर्स में पानी का बहाव तेज। नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी। कसूर के इलाके वलेवाला में दरियाए सतलज में निचले दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंद टूट गए। पानी रिहायशी आबादी और फसलों में दाखिल। दरिया बुर्द होने वाला दिफाई बंद खतरे की घंटी बन गया। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 19.30 फुट और बहाव 67,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। डाउन स्ट्रीम इलाकों को शदीद खतरात लाहक। मुतासरा आबादी ने नकल मकानी शुरू कर दी। कराची वाले फिर तपिश की लपेट में। शहर कैद में सवेरे से ही गर्मी का राज। समुद्री हवाएं मुनक़ता होने से हब्स की कैफियत बरकरार। लाहौर में भी सूरज ने शहरियों को आंखें दिखा दी। जुज़वी अब्रालूद मतले के साथ शाम में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत शुमाली इलाका जात में मतला अब्र आलूद। चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में मरतूब मौसम। दर्जा हरारत में इजाफा और गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। मेजर अनवरुल्लाह काकड़ शहीद का जिक्र किया। ग्रेट मैन। जब वो कैप्टन था तो ग्वादर में जो पीसी होटल है उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। वो जो पार्टी जिसने उसको क्लियर करने के लिए एंटर हुई उसको वो लीड कर रहा था। एंड ही टुक आउट मेनी टेररिस्ट और उसने क्लियर किया ग्वादर का जो पीसी है और उसमें उसको गोलियां भी लगी। वो शदीद जख्मी हुआ बट ही कंटिन्यूड सर्विस इन द आर्मी। ब्रेव सन ऑफ पाकिस्तान एंड वो। कोई भी ऑपरेशन अवाम की निशानदही से ही कामयाब होता है। कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह दे तो नताइज भी भुगतना होंगे। बलूचिस्तान के अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही कर रहे हैं। DGISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। उन्होंने मजीद कहा कि मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद बहादुर ऑफिसर और उस धरती का अजीम बेटा था। बलूचिस्तान की ख़वातीन डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर तैनात हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच नहीं 30% से ज़ायद पख्तून भी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान निसार अहमद और शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ फरीक़ैन की जानिब से दायर 3 अलहदा शिकायत का तफसीली जायजा सरकारी एलामिये के जरिए पब्लिक कर दिया गया। 9 मई के मुकदमात में जमानत। बानी PTI की वकील की जानिब से इजाफी दस्तावेजात अदालत में जमा। दस्तावेजात में मातहत अदलिया और हाई कोर्ट के मुताल्लिक़ फैसले दुरुस्त के दरख्वास्त के साथ लफ्ज़ किए गए हैं। बानी PTI ने 9 मई से मुताल्लिक़ 8 मुख्तलिफ फैसलों के ऑर्डर शीट जमा करवाई है जिसे 19 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज स्पीड ने नहीं, वज़ीर आला पंजाब शहबाज स्पीड ने काम किए थे। अब पंजाब में मरियम स्पीड काम कर रही है। कराची की तरक्की विफाक का नहीं, सिंध हुकूमत का काम है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात SN इकबाल ने कराची फेडरेशन हाउस के दौरे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तारीख में पहली बार विफाकी हुकूमत रखने वाली जमात को कराची में सीटें मिली हैं, तो कराची का ख्याल भी रखें। विफाक के तहत K4 मनसूबे समेत अरबों रुपए की स्कीमें कराची में जारी हैं।
भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करना होगी। मौजूदा रफ्तार से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। हमारा हदफ बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाना है और बिजली की कीमत को 9 सेंट पर लाना है। पेट्रोल इन चीफ UBGSM तनवीर ने कराची फेडरेशन हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगी बिजली और IPPs के मुआहदे मईशत की सबसे बड़ी रुकावट हैं। मईशत कर्जों पर चल रही है जो शर्मनाक है। बेरोजगारी और महंगाई भी तरक्की की राह में रुकावट है। सरकार के अनोखे मंतक चीनी दरामद करने के लिए कम बोली की पेशकश मुस्तरद। महंगी पेशकश कबूल। 2 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने मुस्तरद की जाने वाली दोनों कंपनियों के मुतालिका दस्तावेजात मुकम्मल ना होने का एतराज उठा दिया। लंदन की कंपनी ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी कराची बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए $539 फी मैट्रिक टन और जर्मन कंपनी ने $555 फी मैट्रिक टन बोली लगाई। TCP ने दोनों बोलियां मुस्तरद करके स्विट्जरलैंड कंपनी की $580.75 फी मैट्रिक टन की बोली मंजूर की। सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन। वजारत का ऑनलाइन पोर्टल आज रात 12 बजे बंद हो जाएगा। तर्जमान वजारत हज के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की तादाद 1,08,000 तक पहुँच गई। आज़मीन हज मोबाइल ऐप पाक हज 2026 के जरिए अपने कवाइफ देख सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब प्यूटिन से मुलाकात के बाद यू टर्न। जंग बंदी के बजाय मजमूई आम मुआहदे पर जोर। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को पीर को मुलाकात के लिए बुला लिया। कहा जंग को खत्म करने का बेहतरीन तरीका बराह रास्त आम मुआहदा है। रूस बड़ी ताकत है, यूक्रेन नहीं। इसे जंग बंदी के खात्मे के मुआहदे पर इत्तेफाक करना होगा। यूरोपीय यूनियन को ट्रंप के मौक़िफ़ में तब्दीली पर तशवीश। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काजा कैलिस ने कहा कि तल्ख हकीकत यह है कि रूस का जंग को जल्द खत्म करने का कोई इरादा नहीं। DOI रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के घर में फायरिंग। बेटा और बेटी जाँ बहक। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और उनकी अहलिया शदीद जख्मी। लेवीज के मुताबिक मालाकंड के इलाके बटखेला में नामालूम अफराद ने फायरिंग की। जाँ बहक और जख्मियों को DHQ अस्पताल बटखेला मुंतकिल कर दिया गया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची को तासुब की भेंट चढ़ा दिया गया। चंद ग्रोह कराची में अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। K4 मंसूबे का 5 बार मुख्तलिफ वज़राए आज़म इफ्तिताह कर चुके। कराची में पानी की किल्लत का मसला हल करने के लिए हब कैनाल बनाई। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करती रहेगी। जब वज़ीर आज़म जियाला होगा तो सोचें पाकिस्तान भर में कितना काम होगा। कराची की सरजमीन फिर खून से रंगीन। हैवी ट्रैफिक की जद में आकर शहरियों की अमवात का सिलसिला ना थम सका। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चे और 1 खातून हलाक। औरंगी टाउन में तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने 10 बरस के बच्चे को कुचल दिया। अरसलान मौके पर ही जाँ बहक। साइट बनारस बादशाह खान चौक के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। शनाख्त 35 साला शहनाज के नाम से हुई। भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 के करीब ट्रक की टक्कर से 8 बरस की बच्ची जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची सड़क अबूर करते हुए तेज रफ्तार ट्रक की जद में आई। रवां बरस ट्रैफिक हादसात में अब तक 558 अफराद जान की बाजी हार गए। हैवी गाड़ियों की टक्कर से 170 अफराद लुक़्मा अजल बने। कौमी शाहरा टोल प्लाजा पर कराची से लाहौर जाने वाला गाड़ियों से भरा ट्रेलर उलट गया। हादसे में 8 कीमती गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मोटरवे पुलिस ने मुतासरा ट्रेलर को चालान के लिए रोका, लेकिन ड्राइवर रुकने के बजाय भागा और दूसरी गाड़ी से टकराकर उलट गया। पुलिस ने मौके से फरार की रिपोर्ट दर्ज कर ली। सेक्टर सकरंड में बार बार हादसा का बायस बनने वाली इंतजामी कोताहियों पर अवाम में शदीद बेचैनी और सख्त इक़दाम का मुतालबा किया। भारत के यौम आज़ादी पर वाशिंगटन DC में सिख बिरादरी का भरपूर एहतजाज। खालिस्तान के झंडे लहराए गए। भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के फलक शिगाफ नारे। भारतीय सफारत खाने का मुकम्मल घेराव। खौफजदा सिफारती अमले ने पुलिस तलब कर ली। डॉक्टर सिंधु ने कहा खालिस्तान रेफरेंडम में हज़ारों सिख शरीक होंगे। भारतीय पंजाब की आज़ादी अब ज़्यादा दूर नहीं। Assalamu alaikum. This is an SOS appeal to the President of China, to the President of America, to the UN and all global human rights organizations to take action and save my father's life. My name is Razia Sultan, daughter of Kashmiri Hurriyat leader and freedom fighter Muhammad Yasin Malik. भारतीय फाशिस्ट हुकूमत 3 हफ्तों में मेरे वालिद को फांसी देने का मंसूबा बना रही है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्तान का वीडियो बयान। कहा मैं दुनिया से अपने वालिद को बचाने की इल्तिजा कर रही हूँ, हमारी मदद की जाए।
غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ تیز، مزید 32 فلسطینی شہید، 13 امداد کے متلاشی بھی شامل، شہداء کی مجموعی تعداد 61,900 تک جا پہنچی۔ صہیونی فوج کا الزیتون کا علاقہ خالی کرنے کا حکم، فقہ کشی کا شکار مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے۔ حماس کی اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج کی اپیل، اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے جنگ کے خاتمے کے لیے حماس کو غیر مسلح کرنا سب سے اہم اصول قرار دے دیا۔ اور ہر دور کے استاد نصرت فتح علی خان کا آج 28واں یوم وفات۔ قوالی، غزل، کلاسیکل گائیکی سمیت ہر طرح کی موسیقی کو بام عروج بخشا۔ ریکارڈ سے کیسٹ، MP3 سے YouTube اور ڈیجیٹل پورٹل تک ٹیکنالوجی بدلتی رہی، لیکن استاد نصرت فتح علی خان نے جو گایا وہ کبھی پرانا نہ ہوا۔ نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج۔